So, good morning, everyone. Good morning, everyone. Today, I will discuss about the errors. Then, so what we have discussed in the last class is we discussed about limit about how we can see through eyes. Okay. Then we discuss about microscope. Okay, how microscope works. Okay, then we discuss about the limitation of microscope. Okay, we also discussed in the last class लिमिटेशन का क्या माइक्रोस्कोप का क्या लिमिटेशन है वो सभी डिस्कस किया द लिमिटेशन वाज दैट इट कैन नॉट रिजॉल्व ऑब्जेक्ट्स और सी वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स थ्रू माइक्रोस्कोप व्हिच साइज इज लेस देन द वेवलेंथ होता है 0.6 आर्मस्ट्रॉन्ग ओके तो जो चीज़ हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, मान लो कोई मॉलिक्यूल है जिसका डायमेंशन है 10⁻8 टू 10⁻10 मीटर। इस डायमेंशन के अंदर जो भी चीज़ लाइक सबएटॉमिक पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी ऑब्जर्व थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम। ओके, एंड वी ऑल्सो discuss about a technique to measure the molecular thickness of oleic acid, measurement of mass. Okay, these are the things that we discussed in the last class. Okay, in the measurement of mass we see what is 1 kg. The SI unit of mass is kg. Okay, then what is 1 kg? How we accept internationally the 1 kg. Okay, we see. Then we discuss about 1 atomic unit. Okay, 1 atomic mass unit, mu, or 1. We just get what is 1 second. Okay, then how we discuss about the cesium frequency, cesium atomic clock, cesium 133 atomic clock, these type of things. Okay, now today I will discuss about the accuracy, precision of an instrument. Okay, or discuss about the errors. Today I'll discuss about the errors. Okay, so in physics, experiment is very essential in physics to conclude something. Okay, so in experiment there is some what we do in experiment, what we do the measurements. Okay, but there is some uncertainty in every measurement. Okay, and this uncertainty in the measurement are called errors. Okay, uncertainty in the measurements are called errors. Okay, so
how we can deal with these errors we will discuss in this topic. Okay, and how error propagates in arithmetic operation, okay, like multiplication, division, addition, subtraction. In these things, in this arithmetic operation, how errors will propagate, we'll discuss. Propagation of errors. Okay, this thing we'll discuss. So, as you know, what is error? That uncertainty in every measurement or scientific measurement are called errors. Then, before going to errors, we have to keep in mind two things: that accuracy, and another thing is precision. So, what is accuracy? Accuracy is nothing but that how close. Suppose original value of a measurement सपोज हमने कंसिडर किया कि हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, उसका वैल्यू मिला है ए, ओके। सो उसका जिसका ओरिजिनल वैल्यू है ए, ओके। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज सपोज ए। हमने क्या किया, उसको मेजर किया, जो हमें वैल्यू मिला, ओके, उसमें कुछ एरर होगा, तो एक्यूरेसी बोलता है कि the result that we obtain, how close the result that we obtain is to the actual value. हमें जो वैल्यू मिलेगा, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए लेंथ ऑफ ए पेंसिल, ओके, इज 5.673, ओके, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए। फर्स्ट मेजरमेंट में हमें क्या मिला, जिसका जो वैल्यू है वो मिला 5.5, ओके। और सेकेंडली हमने मेजर किया, उसका वैल्यू मिला हमें 5.43, ओके। सो हुई वन, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ये वाला, क्योंकि 5.5 इज मोर क्लोज टू द ओरिजिनल वैल्यू देन द सेकेंड वन, ओके। सो एक्यूरेसी क्या है, जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू से कितना क्लोज है, how close our measured value is to the original value or actual value. This is called accuracy. And precision means the resolution or the limit to which we can measure, okay. Suppose in the first measurement, the accuracy, what will be the resolution or limit, हम 0.8 centimeter है, and precision is greater, okay. So which one is more precise? This one, 5.40 centimeter. This measurement is more precise because here the resolution is more, okay. This is 0.01. तो ये है दो टर्म, एक्यूरेसी एंड प्रिसाइशन। रैंडम एरर, ओके। सिस्टमेटिक एरर में क्या क्या आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, उसके बाद आता है इम्परफेक्शन टेक्निक, उसके बाद आता है पर्सनल एरर। So I'll discuss little about these things. So what is इंस्ट्रूमेंटल एरर? कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटल एरर राइजेस ड्यू टू द imperfect calibration or imperfect design of the instrument, okay. मान लो जो हम लोग जो ग्लूकोमीटर यूज करते हैं शुगर
मेजर करने के लिए एक्चुअल जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा कम ही मिलता है। ओके ओके जो आर्मपिट में हम थर्मोमीटर को रखते हैं, उसके बाद जो टेम्परेचर रीडिंग दिखा रहा है वो एक्चुअल जो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर उससे हमेशा कम ही मिलता है। तो ये होता है इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंट। ओके तो एक्चुअल वैल्यू से वो हमें जो मिला है वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू वो कम है, तो देयर इज सम एरर। ओके दिस एरर राइजेस ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन द experiment. Okay, other things also, other things also, this error also depends on other things like mm, like temperature, humidity, this type of things. केयर कितना सही से वो एक्सपेरिमेंट या फिर वो मेजरमेंट लेगा। अगर वो पर्सन केयरलेस होता है तो उसका जो एरर मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है। ओके दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके सो अगर उसने सही से एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो सही से नहीं किया है तो उससे भी एरर मिलेगा। तो इट डिपेंड्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ओके, हु इज डूइंग द एक्सपेरिमेंट। तो जो सिस्टमेटिक एरर है, ये तीन सिस्टमेटिक एरर में आता है, ये तीन चीज़ें। ओके और ये जो तीन चीज़ें हम लोग ये ओवरकम कर सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं कि हम बेटर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्यूर यूज़ करें, तो फिर ज़्यादा ध्यान से हम एक्सपेरिमेंट करें। इन सब ये रैंडम एरर जो आता है कहाँ से आता है? इट कम्स ड्यू टू द unpredictable fluctuation of the experimental condition. Okay, random error rises due to the unpredictable fluctuations of the mental condition. Okay, random error जो आता है किस चीज़ से आता है? It rises due to the unpredictable fluctuations of the experimental condition. तो फिर experimental condition क्या होता है? जो कंडीशन रहता है कि रूम टेम्परेचर और टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, देन प्रेशर, these are the experimental conditions. Okay, तो रैंडम एरर जो आता है, अगर ये सब चीज की रूम किसी चीज के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिर वोल्टेज का फ्लक्चुएट हो रहा है, तो फिर उससे भी हमें कुछ एरर आ जाएगा रिजल्ट में। तो फ्रॉम द एक्चुअल फ्लक्चुएट, द रिजल्ट विल फ्लक्चुएट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। ओके सो इन सब चीज़ों के कारण रैंडम एरर राइज होता है, और दीज आर द थिंग्स फ्रॉम व्हिच द रैंडम एरर राइजेस। ओके तो जो एरर होता है ये हमें मिनिमाइज करने के लिए या फिर इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको हम डिटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोसीड्यूर यूज करते हैं। ओके तो फिर वो क्या है? नाउ डिस्कस एब्सोल्यूट एरर। ओके ओके सो I'll discuss about what is absolute error. First of all, I will give an example. Suppose किसी फिजिकल क्वांटिटी का ओरिजिनल वैल्यू है a. ओके दिस इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, एंड हमने we perform n number of experiments. Okay n number of, तो वो लेते हैं हम मीन। ओके इन सब मेजरमेंट का जो एरिथमेटिक मीन होता है, उसको हम कंसिडर करते हैं कि मोस्ट पॉसिबल वैल्यू। ओके तो इसका एरिथमेटिक मीन क्या होगा?
a1 plus a2 plus dot 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 an by n. Okay, this is the most possible value for a for possible value for the measurements. Okay, तो इसको हम लिख सकते हैं in terms of summation I goes from 1 to n ai n. Okay, this is a mean. Okay, तो हमें जो मिला है यहाँ से उसके बाद तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या होता है? ओके, इस यहाँ से आता है एब्सोल्यूट एरर. ओके, तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट क्या होता है, सपोज हमें जो मिला मोस्ट पॉसिबल ट्रू वैल्यू क्या है, ए मीन. ओके, एक्सपेरिमेंट से हमें मिला ए मीन, जो क्वांटिटी था फिजिकल क्वांटिटी ए, उसका मोस्ट पॉसिबल वैल्यू. ओके, मोस्ट पॉसिबल ट्रू वैल्यू इज ए मीन. हमने थ्रू एक्सपेरिमेंट हमने ये कैलकुलेट किया. तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस. दो वो जो है ए मीन है, ये वाला वैल्यू मोस्ट पॉसिबल ट्रू वैल्यू है. ओके, किसी फिजिकल क्वांटिटी का. तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू. ओके, इंडिविजुअल मेजरमेंट मतलब क्या था, a1 a2 a3 डॉट डॉट अप टू an, और ट्रू वैल्यू हमने जो मिला हमें वो है ए मीन. ये है ट्रू वैल्यू हमने जो कैलकुलेट किया, मोस्ट पॉसिबल ट्रू वैल्यू. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो एरर को जो रिप्रेजेंट करता है तब हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो एब्सोल्यूट एरर है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर जो मिलेगा एक एक मेजरमेंट के लिए, उसका हम मीन लेते हैं. ओके, तो फिर ये हो गया एब्सोल्यूट एरर. क्या क्या होगा, a1, उसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं. ओके, और हम लोग कैसे उसका मॉडुलस लेते हैं, a1 माइनस ए मीन. रिप्रेजेंट करेंगे एरर को तो हम लोग ऐसे करेंगे, जो एरर मिलेगा हमें वो होगा रिजल्टेंट एरर. क्या होगा, इन सब का मीन, जो हमें जो मिला ये एरर, एब्सोल्यूट एरर्स मिला, इसका मीन होगा ये डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा an डिवाइडेड बाय n. ओके, ये होगा जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर से उसका मीन. ओके, ये हो गया उसका मीन. तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हमारे जो एक्सपेरिमेंटल डाटा को, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे विथ एरर्स, कि उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन. ओके, तो ये डेल्टा ए है, ये होता है एरर टर्म. ओके, और ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू. ओके, ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू. और जो हमारा जो वैल्यू, मान लो हम, मतलब इससे हम ये मीन करते हैं कि हमें जो वैल्यू है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, मान लो ए, उसका वैल्यू कहाँ से किसके बीच होगा, ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, और ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन.
So this is the range, okay? This is the maximum value, this is the minimum value. This is the range between which the value of our physical quantity will fall. इसके बीच ही रहेगा. जो एक्सपेरिमेंट से मिला हमें कि ए का जो वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी, उसका मान लो वैल्यू ए है. ए का जो वैल्यू है जो इसके बीच रहेगा, ए मीन प्लस डेल्टा मीन और ए मीन माइनस डेल्टा मीन, इसके बीच ही रहेगा. ओके, ये हमें एक्सपेरिमेंट से मिला. तो ऐसे हम लोग डील करते हैं विथ एब्सोल्यूट एरर. ओके, उसके बाद आता है हम लोग जो एक टर्म यूज करते हैं वो होता है रिलेटिव एरर. ओके, परसेंटेज एरर जो है कि इसका हम परसेंटेज लेते हैं. ओके, डेल्टा ए मीन बाय ए मीन इंटू 100%. ओके, इससे जो मिलेगा वो होगा परसेंटेज एरर. ये होगा परसेंटेज एरर. ये सारे चीजें हमें बाद में आए. तो अब हम पढ़ेंगे प्रोपागेशन ऑफ एरर. Propagation of error. Okay, that how errors will propagate in any arithmetic operation. इसमें पढ़ेंगे कि how error will propagate, how error behaves or error will propagate in arithmetic operation. arithmetic operation क्या हो गया? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन. in these things how errors will behave. Okay, how delta a and delta b. Okay, तो मान लीजिए एक तीसरा फिजिकल क्वांटिटी है, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी z इज इक्वल टू a प्लस b. सो व्हाट विल बी द एरर ऑफ z z इक्वल टू a प्लस b. z का जो एरर होगा, z इक्वल टू हमें है a प्लस b. दो फिजिकल क्वांटिटी ए बी जिसका एरर है डेल्टा एंड डेल्टा बी रेस्पेक्टिवली, और एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है z. तो हमें क्या करना है यहाँ पर एडिशन में. ओके, एडिशन में एरर कैसे हम प्रोपागेट होता है. एरर कैसे, मतलब एरर को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सपोज जेड इक्वल टू ए प्लस बी. तीन फिजिकल क्वांटिटी जेड ए बी. ओके, दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी, और तीसरा फिजिकल क्वांटिटी जो जेड विच इज इक्वल टू ए प्लस बी. ए का बी का एरर क्या है, ए और बी का एरर क्या है, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द एरर्स इन ए एंड बी रेस्पेक्ट. तो इसका क्या होगा वैल्यू, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. और ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, जेड. ओके, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. ओके, यहाँ से हमने क्या किया, जेड जो है वो कैंसिल किया, तो हमें क्या मिला, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. ओके, ये फाइनल हमें मिला. तो हम लोग क्या करेंगे, तो इन केस ऑफ एडिशन एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसका जो मैक्सिमम. ओके, एंड सपोज मान लीजिए ए इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.1. ओके, बी इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 0.3.
ओके। तो फिर जेड इजिकल टू ए प्लस बी होता है, जेड इजिकल टू हो रहा है ए प्लस बी। तो डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा जेड इक्वल टू दिस इज डेल्टा ए और दिस इज डेल्टा बी। सो डेट इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ओके, विच इज 0.1 प्लस 0.3 इजिकल टू 0.4। ओके। तो जो इन जो इन कैलकुलेशन ऑफ जेड, व्हाट विल बी द एरर, what will be error in calculating z, delta z equal to 0.4. okay, this is the thing. Now in case of subtraction, सेम फिजिकल क्वांटिटी ए बी जिसका रेस्पेक्टिवली एरर जिसका है डेल्टा ए एंड डेल्टा बी रेस्पेक्टिवली, और जेड इजिकल टू ए माइनस बी निकालना है। तो जेड जो है फिजिकल, एक तीसरा फिजिकल क्वांटिटी जो है ए माइनस बी, हमें निकालना है डेल्टा जेड। सो ओके, ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एरर है डेल्टा एंड डेल्टा बी रेस्पेक्टिवली। जेड इजिकल टू ए माइनस बी, तो सर डेल्टा जेड, तो फाइनली हमें क्या मिला, प्लस माइनस डेल्टा जेड इजिकल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। और एक चीज़ मैंने पहले ही बोला था कि इन 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 केसेस में हम क्या करते हैं, डेल्टा जेड कौन सा वैल्यू लेते हैं, जो इसका मैक्सिमम मिलेगा। प्लस माइनस डेल्टा है और माइनस प्लस डेल्टा बी का मैक्सिमम, जो यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म प्लस माइनस डेल्टा एंड माइनस प्लस डेल्टा बी, इट विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस। ओके, सो इसी को हम लेते हैं डेल्टा जेड। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो यू सी दैट इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन द एरर इस, ओके, ए का एरर है डेल्टा है, बी का है डेल्टा बी, और जेड होता जो फिजिकल जेड जो है वो है ए इंटू बी। तो हमें निकालना है डेल्टा जेड, व्हाट विल बी द एरर इन कैलकुलेटिंग जेड। ओके, डेल्टा जेड कितना है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। सपोज फाइनल वैल्यू जो है वो मिला जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ओके, ये है हमारा फाइनल वैल्यू। ओके, तो ये इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी। सो ए होगा विथ एरर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी होगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी बी, डेल्टा एंड डेल्टा बी, दिस टर्म वी कैन नेग्लेक्ट बिकॉज डेल्टा एंड डेल्टा बी आर इंडिविजुअली वेरी स्मॉल। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू व्हाट इट विल बी, ए बी, ओके, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। ओके, ये जो ए बी है ये क्या होता है, ये है जेड, जेड इज इक्वल जेड। सो ए बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। तो ये जेड और ये जेड हम लोग उड़ा देते हैं। उसके बाद तो ये जेड कैंसिल करके हम लोग क्या फाइनली क्या मिला, डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ए बी से डिवाइड करेंगे। जो ए बी इजिकल टू व्हाट इज दिस, ए बी इजिकल टू जेड, डिवाइडिंग ए बी बाई बोथ साइड। तो इस तरफ हम लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा जेड इज बाई जेड, जो कि जेड इक्वल टू ए बी है। ओके, प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए बाई ए बी और बाई ए बी। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ए कैंसिल हो गया और बी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई
जेड। तो ये जो है डेल्टा जेड वाई जेड, ये क्या था, वो रिलेटिव एरर जो हमने पहले पढ़ा था, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये है आपका रिलेटिव एरर। ओके, तो here this is apply so this is the use of this relative error. Okay, in case of multiplication we get relative error. Okay, so हमने पहले एक चीज बोला था कि जो हमें वैल्यू मिलेगा ऐसा प्लस माइनस टर्म में, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी को हम डेल्टा जेड मानेंगे, एरर मानेंगे। ओके, सो यहाँ से क्या मिलेगा, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिला, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द रिलेटिव एरर ऑफ द फाइनल रिजल्ट, okay, the relative error, okay, this is delta z by z, relative error of the final result is the addition of the relative errors of the individual quantities. Okay, individual quantity क्या है, a and b, उसका relative error है डेल्टा a by a प्लस और डेल्टा b by b। ए और बी का रिलेटिव एरर है डेल्टा ए का रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाई बी का रिलेटिव एरर है डेल्टा बी बाई बी। जो हमें इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हमें एरर मिलेगा, रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाई जेड, इट विल बी इक्वल टू समेशन और एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स ऑफ द क्वांटिटीज। ओके, ए और बी है आपका इंडिविजुअल क्वांटिटी, जेड इजिकल टू ए बाई बी था, और इसका इंडिविजुअल क्वांटिटी क्या था, इंडिविजुअल क्वांटिटी क्या था, ए और बी। ओके, तो फिर रिलेटिव एरर ऑफ द रिजल्ट डेल्टा जेड बाई जेड इजिकल टू द एडिशन ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटी। ओके, दिस इज। अब हम देखेंगे इन केस ऑफ डिवीजन हाउ एरर्स how we can represent errors or how error propagates in division. Okay, in division okay, तो सेम थिंग, ए और बी दो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसका एरर है डेल्टा एन डेल्टा बी रेस्पेक्टिवली, और जेड है, जेड क्या है, ए बाई बी। ओके, तो हम लोग जेड प्लस डेल्टा जेड जो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ओके, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ए बाई बी, तो ए के जगह पर लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी को जो है हम ऊपर ले जाएंगे। ओके, बी प्लस माइनस डेल्टा बी इनवर्स। और एक चीज आप लोगों ने पढ़ा था शायद, आई विल रब दिस 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1। तो ये जो सीरीज है, इनफाइनिट सीरीज होता है, ये क्या होगा, ये होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस विल गो अप टू इन्फिनिटी। ओके, दिस इज अ सीरीज। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पर भी है, जो और यहाँ पर एक कंडीशन है कि x शुड बी लेस देन 1। ओके, दिस इज द कंडीशन। ओके, दिस इज द सीरीज फॉर एंड दिस इज द कंडीशन, x शुड बी लेस देन 1। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो डेल्टा बी बाई बी होगा, ये लेस देन 1 होगा, ये एरर है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है। ओके, इट विल बी लेस देन 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो b है, ये b को हम कॉमन ले लेंगे इससे, तो 1 बाई बी, सो बी इन्वर्स आ गया, b को कॉमन लेंगे तो b इन्वर्स आ जाएगा, जो होगा 1 बाई बी। ओके, 1 बाई बी लिख दिया मैंने, a प्लस माइनस डेल्टा ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी इन्वर्स। ओके, now we will expand this series. Okay, 1 by b a प्लस माइनस डेल्टा ए, तो इसको हम एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, ये पहले वाला माइनस आएगा, वो प्लस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई तो ये हम लिख सकते हैं माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, यहाँ पर एक चीज है, जो डेल्टा बी है, दिस इज वेरी स्मॉल। ओके, वेरी स्मॉल।
डेल्टा बी जो है वेरी स्मॉल, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंस डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल, सो हायर ऑर्डर टर्म्स लाइक स्क्वायर, क्यूब, टू दी पावर 4, डेल्टा बी टू दी पावर स्क्वायर, डेल्टा बी टू दी पावर 4 क्यूब, डेल्टा बी टू दी पावर, so this since delta b is very small, so we can neglect the terms like delta b square, delta b cube, okay, higher order terms we can neglect, okay। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें फाइनली क्या मिला, नेग्लेक्टिंग दिस हायर ऑर्डर टर्म्स, डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू 1 बाई बी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और मिला बी माइनस प्लस डेल्टा बी, ओके। तो ये आई रब दिस, उसके बाद जो है, उसके बाद सॉरी 1 डेल्टा बी बाई बी, ओके, दिस थिंग वी गॉट, ओके ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो a है, a को हम कॉमन लाएंगे, ओके, a बाई बी, तो ये क्या हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए और 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी, ओके। उसके बाद हम लोग सिंपल मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1, तो क्या मिलेगा यहाँ से, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बाई ए बी, ओके। ये जो टर्म है डेल्टा इन डेल्टा बी, ये वेरी स्मॉल है, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस, ओके, वी कैन नेग्लेक्ट दिस। तो फाइनली हमें क्या मिला, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, सॉरी, ओके, ये वाला टर्म, ओके, a बाई बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये जो हमें फाइनली मिला। नाउ ए बी को, सो z प्लस माइनस डेल्टा z इजिकल टू, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी प्लस माइनस ए कैंसिल हो गया, डेल्टा, ये वाला, सॉरी, ये जो है लास्ट टर्म, ये डेल्टा ए बाई डेल्टा बी बाई बी, okay, I go for the last term, I will go for the last term, okay। जो हमें मिला था a बाई बी 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा ए, और मिला था 1 माइनस प्लस डेल्टा बी, ओके। तो a बाई बी 1 डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी, ओके। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, और जो थर्ड टर्म है हमने क्या किया था, उसको हटा दिया था, ओके। इट शुड बी कम डेल्टा ए बाई ए एक्चुअली, ओके, ये वाला टर्म हमें मिला, ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बाई बी प्लस माइनस ए बाई बी प्लस ए बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, ऐसा लिखें। ये जो टर्म है ये है z, ओके, z, और ये इसको z पकड़ लेंगे तो ये वाला z और ये वाला z कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई
बी। ओके, वो ए बाई बी जो है ये है क्या है, जेड। ओके, दिस इज जेड। तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो हमें जो मल्टीप्लिकेशन में जो मिला था उसी चीज़ हमें, सेम चीज़ हमें डिवीजन में भी मिला है, दिस थिंग। ओके, तो इससे हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म विल टेक एस एरर। ओके, एस रिप्रेजेंटिंग एरर। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके, सो डेल्टा जेड इन केस ऑफ, so this, so in case of division it is same as subtraction. Okay, the error will be same as subtraction. So in case of division, delta z will also equal to delta z by z. Actually this is delta z relative error, delta a by a plus delta b by b. So same thing in division like multiplication, that in case of division the error, the relative error of the quantity will be summation of the or addition of the individual relative error, okay, of the given physical, of the given quantities. The final relative error will be addition of the individual relative error of the quantities. यहाँ पर क्या क्या क्वांटिटी, z इक्वल टू a बाई b था, ये जो इंडिविजुअल क्वांटिटी क्या था, a और b। ओके, हमें निकालना था डेल्टा z बाई z। ओके, रिलेटिव एरर। तो यहाँ से क्या मिला हमें, दिस इज इक्वल टू द फाइनल रिलेटिव एरर इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रिलेटिव एरर ऑफ द क्वांटिटीज। ओके, दिस इज, सो अभी तक हमने जो पढ़ा एरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब में एरर कैसे प्रोपागेट करते हैं। ओके, तो इन केस ऑफ, सो फाइनली हमें मिला इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, in case of addition and or subtraction, what will be the error, delta z is equal to delta a plus delta b. Or in case of multiplication, and division, what is, we get relative error. Okay, in case of multiplication and division we go for relative error, delta z by z is equal to delta a by relative error of the individual quantity, delta b by b. These are the two important things. Okay, it will be clear when you solve numericals. Okay, I will also go for numericals. Okay, और एक चीज जो है हमें इम्पोर्टेंट चीज है, सपोज एक क्वेश्चन है, मान एक क्वेश्चन है, ए और बी दो फिजिकल, ए और डी को दो क्वांटिटी है, व्हाट विल बी द डेल्टा जेड। ओके, डेल्टा जेड विल बी हाउ मच। ओके, सो वी गो फॉर दिस प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नो हमें ये कैसे मिलेगा, डेल्टा जेड इक्वल टू हाउ व्हाट विल बी डेल्टा जेड। ओके, सो दिस I'll discuss this problem in the next class. Okay, thank you.